चलो, let's start with depreciation. See, what was depreciation? Reduction in the value of a fixed asset due to usage, right? And we saw that it's a cash expense or a non-cash expense? Non-cash. You don't pay it to it, right? Money doesn't go out of the business. Okay? It's a non-cash expense. Then, is it important to chart debris because cash is not going up? Still, are we supposed to record it? Yes. Because if we do not, then what will happen? We'll get wrong values of asset, we'll get wrong profits in the books, which is not right from the disclosure point of view. Bookkeeping should disclose all the information with true and fair. Jaisa vaisa, na acha na bura. Then we discussed about the accounting standards 10. पहले AS6 govern करता था, अभी AS10 govern करता है. AS6 and AS10 merge कर दिया. तो AS10 क्या बोलता है कि डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना जरूरी है, बट कौन सा मेथड उसको अप्लाई करना है, कितना अमाउंट आपको चार्ज करना है, इसके बारे में कुछ बोलता नहीं. तो आपको मर्जी चाहे उतना अमाउंट आप डेप्रीसिएशन का चार्ज कर सकते हो एज पर योर यूजेज, एज पर योर यूजेज. ओके, इसमें कोई पाबंदी नहीं आप कौन सा मेथड यूज करते हो, इसका कोई मेंशन नहीं किया गया. सो वी सॉ फॉर दैट various methods are there, 6-7 methods are there, out of which we'll be having 2 methods. Do you remember the names of those 2 methods? FIM and RBM. Reducing balance method and fixed installment method. So, what was fixed installment? Started with the first one. What is fixed installment method? What is the peculiarity? What is the USP of fixed installment? Calculated on original cost and the amount of depreciation will remain same. Amount of depreciation will not change, it remains constant. Every year it remains same, right? That we saw under FI. And एक सम भी किया था हमने, आपको बताया था जर्नली पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? लेजर. उसमें भी 2 अकाउंट पूछे जाते हैं, मशीनरी अकाउंट एंड depreciation account. You are asked generally 2 accounts, machinery and depreciation account. Is that right? एंड एक सम हमने किया था, एक सम होमवर्क भी था. होमवर्क आया, होमवर्क में आई थिंक द वैल्यू ऑफ मशीन वाज 2 lakhs. Bought it on the first date, so 20, 180, 160, 140. 140 should be your final. Is that right? That is the balance. Depri में 2 machine और buy भी है, 2 entry. Is that clear? That was the homework part. Now today we are going to learn entries with sale. Entries with sale. So all of you take sum number 2 and let's start with sum number 2. New trading company. In the books of New Trading Company, Mumbai, you have to make machinery account and you have to make depreciation account. Same 2 accounts will be asked, some or the other variations के साथ. Let's take sum number 2. देखो ध्यान. अच्छा, जैन वालों का आज एक्स्ट्रा लेक्चर है 7:15 to 9. We'll be doing cash book only जैन. Okay. तो मेरा री एग्जाम का डेट आ गया 3rd Jan to 9th Jan. ठीक है. 3rd to 9th में ना एनएम मीठी भाई का लेक्चर ऑलमोस्ट डेली होगा. आपको छुट्टी है ना? एनएम मीठी भाई विल बी कॉल्ड डेली. बैचेस आगे पीछे हो जाएंगे कभी. हाँ, क्या क्लास छुट्टी है ना आपको 3rd से 11? हाँ है. ओनली मीठी भाई को एनएम को नहीं है. बोलेंगे एग्जाम के वक्त नहीं लगता है. सेल्फ 12th ની કાઈ પ્રિલિમ યા કાઈ છે ને એટલે અમે આવી. हाँ, 12th का प्रीलिम में छुट्टी रहता है कॉलेज 2 बजे से. अच्छा, थर्सडे को भी एनएमईटी भाई शायद 2 बजे है ना? पहले सफर पहले. तो थर्सडे आई एम प्लानिंग टू कीप योर एनएमईटी भाई बैच एट 8:30 instead of 7:15. नहीं, छुट्टी नहीं.
कितना छुट्टी चाहिए पागल आदमी, तू छुट्टी का नाम मत ले, हो गया तेरा कोटा खत्म, 3 साल का छुट्टी ले लिया तूने। सेकेंड सम देखो, अभी न्यू ट्रेडिंग कंपनी मुंबई, अभी ऐसे सम्स में क्या होता है देखो, पहले पूरा सम में समराइज कर लेता हूं, देख लो। न्यू ट्रेडिंग कंपनी मुंबई परचेज द मशीनरी फॉर 90,000 on 1st April 2008, okay? Then on 1st October 2008, additional machinery was purchased for 60,000. अभी हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था ना, उसमें एक ही मशीन था, ये वाले सब में दूसरा भी आ गया। And on 1st October 2010, the company sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000. तो आपने बेचा भी है, खरीदा तो है और बेचा भी है। Depreciation is to be charged at 10% under straight line method. What is straight line method? FI. On 31st March every year. Why 31st March? What might be 31st March? Here. Prepare machinery account and depreciation account for 3 years, 8, 9, 9, 10 and 10, 11. So just think and tell me, you are doing it for 3 years, right? 8, 9, 9, 10, 10, 11. So can I say 8, 9 will begin on 1st April 08 and it will end on 31st March 09. 9, 10 will be from 1st April 09 to 31st March 10. And 10, 11 will be 1st April 11 to, sorry, 1st April 10 to 31st March 11, right? So it is 7, 8, 8, 9, 9, 10. पहला दो चीज लिख के रख देने का, year ending है method. What is the year end? 31st March, and what is the method? 10% FIM. Is that right? Fixed installment method, straight line are all one and the same. Agreed? Sorted? Now, second part, सबको समराइज कर देना है, ओके? क्योंकि इधर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है आपकी डेट्स में और कैलकुलेशंस। तो लेट्स समराइज द प्रॉब्लम। हाउ टू डू दैट? देखो, न्यू ट्रेडिंग कंपनी मुंबई परचेज द मशीनरी ऑफ 90,000 ऑन 1st April 08. Tell me, 1st April 08 falls in which year? 8, 9. 8, 9. Keep that in mind. Then on 1st October 08, additional machine was purchased for 60,000. Where does 1st October 08 fall in? 8, 9. Again 8, 9. Correct? So can I say 8, 9 में दो खरीदा? Then on 1st October 2010, the company sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000. तो 1st October 2010 को बेचा हुआ है। Now 1st October 2010 falls in which year? 10, 11. अप्रैल से मार्च 11, अप्रैल 10 से मार्च 11 के बीच में 1st October 2010. That falls in the year 10, 11, which is the third year, right? बस that's it, और कुछ डेटा दिया नहीं है। तो if we summarize, what do we get? I can say that in the year 0809, I have purchased 2 machines. There are 2 purchases. What about 9, 10? Is there anything happening in the year 9, 10? Any purchase, any sale? Nothing. It's planned, only depreciation in this year. What about 10, 11? There is one sale. So what do we do? First summarize. Summarize कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वापस घड़ी पूरा कैलकुलेशन, डेट वेट सब देखने की जरूरत नहीं। कौन सा ईयर में क्या हो रहा है, रफ आइडिया आपके सामने है। 8, 9 में आपने 2 खरीदा है, तो आपको पता है 8, 9 में 2 खरीद के डेप्री मारना है। 9, 10 में आपने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा, तो भी क्या करना है? डेप्रिसिएशन करना है। और 10, 11 में 1 बेचा है, बराबर है? लेट्स बिगिन। फर्स्ट ईयर क्या हुआ है? फर्स्ट ईयर में 2 खरीदा, पढ़ो। परचेज डेट वाइज जाना है, एंट्रीज रिकॉर्ड करते करते, जर्नल नहीं करना, डायरेक्टली लेजर में जाना है। तो 1st April 2008 we bought a machine for 90,000. What is that? मशीन टू कैश बैंक। मशीन टू कैश बैंक बता था, कैश मत लिखना, मशीन में टू कैश बैंक हाउ मच? 90,000 on 1st April 2008. कैश बैंक में बाय मशीन, मशीन में टू कैश बैंक. इज दैट राइट? ऑलराइट, देन what happens next? Another machine was purchased. On which date? 1st October. So on 1st October 08, again you pass the same entry, machine to cash bank.
हमने जो पिछला सम किया था उसमें एक ही मशीन था, बट यहाँ पे दो है। बिजनेस में तो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, सबका फंडा वही है। परचेज किया तो रिकॉर्ड किया दोनों। और कुछ किया है इस साल में, देख लिया हमने 8 9 में 2 ही खरीदा हुआ है, और कुछ है तो वापस वेरीफाई कर लो। नहीं है 8 9 हुआ खत्म, तो क्या करूं, बैलेंस कर दूं, डेप्रिसिएशन। वही तो मेन चीज करना है। कब करते हो डेप्रिसिएशन? लास्ट डेट पे करते हो। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ दिस? 31st March 2009. And what entry you pass for charging depreciation? Depri to machine. Depri expense बढ़ा, machine asset घटा। So depri में to machine और machine में by depri. Agree? Depri में to machine, machine में by depri. Depreciation में to machine, machine में by depri. Let's make a working note. Working note 2. Depreciation for the year 8 9. Tell me, which method are we doing? FIM or RBM? FIM. So we charge depri on what amount in FIM method? On the original cost. You always charge it on the original cost. मुझे बताओ कितने मशीन है आपके पास? दो, दोनों पे अलग अलग करना है। Let's name them M1 and M2. M1 and M2. M1 फर्स्ट मशीन कितने की थी? 90,000 का 10%. But for how many months? Check. When did we buy the machine? We bought it on what date? 1st of April. When is our year end? 31st March. So can I say we have used it for 1 year, full year? April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 12 महीना, एक साल, पूरा साल वापरा है, तो कितना होगा? कट 9,000. Is that right? लास्ट समय एक ही मशीन था, अभी दो है, तो दोनों पे कर रहा हूँ डेप्री। दूसरी वाली कितने की थी मशीन? 60 की थी ना? 60,000 का 10%। दिख रहा है ना, 1 अक्टूबर को 60,000 का खरीदा था, डेट वाइज जा रहा हूं। दूसरा 60,000 का था, उसका 10%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? व्हाई सो? You bought it on 1st October. So October, November, December, January, February, March. It comes to how many months? 6 months. So into 6 upon 12. Is that right? पहला वाला मशीन पे 12 महीना, दूसरा वाला मशीन पे 6 महीना। क्यों 6 महीना भैया? अक्टूबर में खरीदा था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 महीना वापरा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। समझ आया? What if ये भी 12 महीना होता, अप्रैल से होता 12 महीना, 6,000। अभी 3 महीना, तो 6 महीना तो 3,000। What's your net amount? 3,000. So what is the total? 12,000. Is that correct? Hello? 12,000 मिला टोटल डेप्रिस 12 फर्स्ट ईयर का। समझा कहां से आया? दो मशीन, पहले वाले पे 12 महीना, दूसरे पे 6 महीना। साल खत्म हो गया, क्या करोगे अभी आप? बैलेंस। मशीन में तो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड, डेबिट वुड बी ग्रेटर, राइट? तो 150 minus 12 will give you 1,38,000. क्या लिखना है? तो बाय बैलेंस सीडी ऑन 31st March 09। ये क्या बनेगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में? टू बैलेंस बीडी। इज दैट राइट? टू बैलेंस बीडी 1,38,000 on 1,409. 1,409, 1,38,000. Sorted, huh? And what about depreciation account? Will you still have balance over here? No, because it's a nominal account. So where do you transfer it? By profit and loss account. I think that's 12,000 and 12,000. 31st March 09. Depreciation is a nominal account, so that will be transferred to which account at the year end? Year, to calculate year end का profit. बराबर से? पहला साल समझ में आया? क्या हुआ था? फर्स्ट ईयर में आपने 2 मशीन खरीदा और दोनों को डेप्रिशिएट कर, बराबर है? ओके।
टेल मी सेकेंड ईयर व्हाट इज हैपनिंग इन सेकेंड ईयर? कुछ नहीं है, ना परचेज है ना सेल है, देख लो चेक कर लो। आपने बेचा तो है लेकिन कब? 1 अक्टूबर 2010 को बेचा है, तो ना परचेज है ना सेल है, तो क्या करोगे? सिर्फ डेप्रिसिएशन करोगे। तो जंप टू लास्ट डेट, व्हाट विल द लास्ट डेट ऑफ दिस? 31st March 2010, करेक्ट? बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्री में क्या आएगा? टू मशीनरी अकाउंट, एम आई राइट? ऑन 31st March 10, मशीन में बाय डेप्री, डेप्री में टू मशीनरी अकाउंट। हेलो, second year there wasn't any purchase, there wasn't any sale, so what am I supposed to do? Only charge debris, correct? मुझे बताइए, how many machines do we have in year 2? Still same, 2 machines, M1 and M2. Which method are we doing? FIM कर रहे हो? तो कौन से अमाउंट पे डेब्री चार्ज होता है FIM में? ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन? 90,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सेकेंड ईयर में कितना यूज किया सेकेंड ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2009 to 2010। ऊपर से टपका है ना लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से जो भी मशीन आया है ये साल में शुरू से लेके एंड तक अपने पास ही पड़ा हुआ है, तो कितना महीना यूज किया? पिछला साल मत देखो, अभी उसको भूल जाओ। करंट ईयर में अप्रैल से मार्च हमारे पास ही था ना, तो कितना यूज हुआ है? फुल 12 महीना यूज हुआ है। इनफैक्ट दोनों मशीन फुल 12 महीना यूज हुआ है, यस और नो? क्योंकि दोनों कहां से टपक रहा है? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जितना वापरा वो वापरा, उसको खत्म करो। इस साल 2009 अप्रैल से लेके 31st March 2010 तक अपने पास ही था ना, तो वी हैव यूज्ड बोथ द मशीन फॉर 12 months। तो पहले वाले पे भी 12 महीना और दूसरे वाले पे भी 12 महीना आएगा। तो ये कितना होता है? कट 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 9,000 and 6,000। So what's my total debris? 15,000। Am I right? 15,000 आएगा आपका टोटल डेब्री, करेक्ट? एंट्री क्या है? डेब्री में 2 मशीन 15,000, मशीन में बाय डेब्री 15,000, एंड बाकी का क्या करना है? बैलेंस। साल खत्म हुआ, 1,38,000 डेबिट इज ग्रेटर, 1,38,000 minus 15 will give me 123. Am I right? Correct? By balance CD will become what? To balance BD 1,23,000 debit minus credit. डेट क्या होगा ओपनिंग बैलेंस का? 1/4/11, राइट? वाई? साल थोड़ी चेंज होता है, कैलेंडर चेंज नहीं होता मार्च से अप्रैल, है ना? 1/4/10, समझ रहा है? पहला साल दोनों को डेप्रिशिएट किया, दूसरा साल भी दोनों को, लेकिन पहला साल फर्स्ट मशीन को 12 महीना, दूसरा मशीन को 6 महीना, सेकेंड ईयर दोनों मशीन को 12 महीना, क्योंकि दोनों मशीन अप्रैल से मार्च तक यूज हुआ। फिर ये हो गया बैलेंस। और डेप्रिसिएशन में क्या लिखना है आपको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेचारा 1 साल की लाइफ वाला अकाउंट है। क्यों ऐसा? व्हाई व्हाट इज द रीजन आई एम ट्रांसफरिंग इट टू P&L? Nominal account. All expenses and incomes have a life of how much? Less than a year, 1 year max. 1 साल के में चले जाते हैं बेचारे सब P&L में। Next year new account, new expense, new income, afresh. Is this clear? First 2 years are sorted, all of you. बराबर है? What happened in the first year? Depreciation. What happened in the second year? Depreciation. Third year कुछ तो अलग हो रहा है। पढ़ो सब लोग क्या दिया, पहले 2 साल तक कर लो सब लोग। फर्स्ट 2 years क्लियर है सबको? हो गया फर्स्ट 2 years? Any doubts in these two? Up till now the same thing was going on, right? Depreciation and say depreciation and purchase and debris वही चल रहा था। अभी गम्मत कुछ नया देखो। On 1st October 2010
The company sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000. What do you mean by this? English में दिया हुआ है. On 1st October 2010, you sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000. तो कौन सा वाला मशीन आपने बेचा है? 60 वाला बेचा है. बराबर है. कैसे पता चला? 1st October 08 वाला बेचा. तो फर्स्ट मशीन की सेकेंड मशीन आपने बेचा है, राइट? और 60 का बेच दिया है 40,000 में. ओके, जब भी आप सेल करते हो ना, तो ये वर्किंग नोट बनाना बहुत बहुत जरूरी है. दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. ये वाला नोट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. ठीक है, मुझे बताइए, आपने 60 का मशीन था, 40 में बेच दिया, 30,000 का लॉस. नहीं, depreciation. बराबर ना? क्यों? 60 का खरीदा, 40 में बेचा, उसकी वैल्यू 60 में. अभी उसकी वैल्यू 60 नहीं है. समझ रहे हो? क्या 60 माइनस 40 20 का लॉस है? नहीं. हाँ, वेरी गुड. देखो, आप ये एयर कंडीशनर लेके आए आज 50,000 का, 1 साल बाद हो गया 40 का, 2 साल बाद हो गया 30 का. 30 का आपने 25 में बेचा, लॉस कितने का? 5 का लॉस है. 25 का लॉस नहीं है, 5 का लॉस है. याद है आपको सम्स में आता था जर्नल में, मशीन हैविंग अ कॉस्ट ऑफ सो एंड सो विथ अ बुक वैल्यू ऑफ सो एंड सो. तो कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों दिया, तो हम लोग कॉस्ट इग्नोर करते. बुक वैल्यू मतलब आज की तारीख का वैल्यू, आज कितने का है. समझ में आ रहा है? तो ये मशीन खरीदा था 60 में, वो तो 2 साल पहले. आज कितने का है वो ढूंढना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. वंस अगेन, कैन आई डायरेक्टली रिकॉर्ड 60 माइनस 40 20? तुमने आज होंडा सिटी लिए 10 लाख की, 1 साल बाद हो गई 9 लाख की, 2 साल बाद हो गई 8 लाख की. 8 लाख की गाड़ी तुमने 7.5 में बेच दी, लॉस कितने का हुआ? 50 का हुआ. कहने से 2,50,000 का लॉस हुआ? पॉसिबल ही नहीं है ना. डेप्रिशिएट हो रहा है ऑलरेडी, एक्सपेंस दिखा रहे हो आप. तो आज के डेट में वो एसेट का वैल्यू कितना है वो पता चलना चाहिए ना. हेलो, वो ढूंढने के लिए ये महान नोट बनाया जा रहा है. इसका नोट का हेडिंग क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. सो 100 बात की एक बात, जब भी आप कोई एसेट बेचोगे तभी आपको ये वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी. इज इट क्लियर? अब ये नोट बनती कैसे, ध्यान से देखना. It will start with the original cost of the asset sold. So original cost as